In this lecture, I will explain multi-dimensional arrays and how we can derive indexing formula for row major order and column major order. So first we understand what is multi-dimensional array. So it is a collection of data elements in a continuous memory location. So n-dimensional array, capital A, which consists of dimensions. There are n dimensions L1, L2, L3, Ln. So it is a collection of L1 by L2 by L3 multiplied by Ln data elements in a sequence where each element can be accessed by a set of subscripts I1, I2, I3 to In. So we can access any item from the array with the help of these subscripts like that. So where capital L is the dimension which start from lower bound to upper bound, it is also called the length of that dimension. So we can say that the length is equal to upper bound of that dimension minus the lower bound of that dimension plus 1. And the effective index is the number of indices preceding I of k. तो I of k से पहले कितने आपके इंडेक्स हैं, so that is called the effective index. That is, we can say that effective index is equal to I of k minus lower bound. So this is the actual index number minus the lower bound of that dimension is called the effective index number. तो जब हम कैलकुलेशन करेंगे तो इफेक्टिव इंडेक्स नंबर का ही यूज करेंगे. Now n-dimensional array. In computer's memory, we know that array elements are stored in a sequence locations by two methods. The first way is row major order. Now in row major order, array elements are listed in such a manner that the last subscripts varies most frequently and the next to last subscripts varies less rapidly and so on. Now this is an array, this is the first subscript and this is the last subscript. So rate of change in last subscript is very fast here and the rate of change in the first subscript is slow. ओके तो वेरिएशन यहाँ पर ज्यादा होगा ए, उसके बाद इसमें कम होगा, उससे नीचे इसमें होगा और सबसे कम वेरिएशन होगा फर्स्ट सबस्क्रिप्ट में इन द रो मेजर ऑर्डर. Now in column major order, what is the approach of column major order? So array elements are listed so that the first subscript जो पहला इंडेक्स है that will vary very quickly, उसका रेट जो है वो काफी फास्ट होगा. I1 is the first index number and In is the last index number. Okay, so I1 change very quickly, rate of change is very high, उससे कम I2 में, उससे कम I3 में, and the last one is In. So the rate of change in variation in the last subscript is very slow. So this is the fundamental concept of row major and column major order. Now let us assume हम 3D मैट्रिक्स का एक एग्जाम्पल लेकर के यहाँ पर आगे एक्सप्लेन करेंगे. So this is a matrix capital A consists of 2 rows 4 columns and total number of 2D matrix is 3. That is total number of element is 24. So in row major order, as we know, the first dimension change slow and the last dimension change very fast. So the visual representation is look like this one. There are 2 rows and 3 columns. So 2 rows and 4 columns, sorry, 4 columns. Okay, and this is matrix number 1. So last subscript represent the matrix number. So this is my first matrix. आप coordinate का तीसरा point देखेंगे, that is 1. It means matrix number 1. Now this is matrix number 2. आप देखेंगे last
index is 2, it means this is a second matrix, and this is first row, this is second row, this is first column, second column, third column, fourth column of matrix number 2. In the similar way, this is matrix number 3. तो आप देखेंगे यहाँ पे 3 मैट्रिक्स हैं 2x4 साइज के, will be look like this one. And how we can store numbers in row major order, because कंप्यूटर की मेमोरी में तो लीनियर वे में ही हमें स्टोर करना है. So there are 24 cells here, and the index number of first cell, it is 111. Okay, and the next one is 2. मेथड क्या होगा, जो वेरिएशन जो होगा इंडेक्स नंबर, जो लास्ट इंडेक्स नंबर में वेरिएशन फास्ट होगा. सो दिस इज 1 2 एंड 3. बाकी देखिए यहाँ पे कोई चेंज नहीं है, 1 2 3. नाउ वंस अगेन अब वेरिएशन यहाँ पर आएगा सेकेंड इंडेक्स में, लास्ट सेकेंड में. ओके, सो एक बार वेरिएशन बट दैट इज कांस्टेंट, और उसके बाद यहाँ से 1 2 3 फर्स्ट में वेरिएशन फास्ट है, बट दिस इज 2. नाउ कम टू 3, क्योंकि आप नेक्स्ट मैक्सिमम कितने यहाँ पर वैल्यू ले सकते हैं 4. सो 3 के बाद 1 2 3, सो वेरिएशन इज हाई. यहाँ पर अभी 3 बार ही हुआ है. ओके, स्लो चल रहा है. नाउ 4 के लिए वेरिएशन 1 2 3. ओके, सो 4 के लिए वेरिएशन हुआ, बट आप देखेंगे यहाँ पे ये सब कांस्टेंट है. इसका जो रेट ऑफ चेंज है दैट इज वेरी स्लो, और यहाँ पे रेट ऑफ चेंज इज वेरी हाई. ओके, नाउ कम टू द नेक्स्ट. अब हम 2 को यहाँ पे फिक्स कर लेते हैं, एंड दिस इज 1 1 जैसे यहाँ पे था. सो दिस इज 1 2 3. सो रेट ऑफ चेंज इज दिस फॉर सेकेंड वैल्यू. ओके, फर्स्ट इंडेक्स का जो वैल्यू 2 सेट किया है. नाउ 1 2 3, अब यहाँ पे 1 के लिए था मिडिल इंडेक्स सेट किया 2 के ऊपर, 1 2 3, एंड 3 के लिए 1 2 3, और वंस अगेन 4 के लिए 1 2 3. बट यहाँ पे 2 है, क्योंकि लास्ट इंडेक्स आप मैक्सिमम 2 तक लेके जा सकते थे, मिडिल वाले को मैक्सिमम 4 वैल्यूज दे सकते हैं, और फर्स्ट इंडेक्स नंबर में 2 और लास्ट इंडेक्स नंबर में 3 वैल्यूज. सो आपने देखा कि वेरिएशंस है. अब हम इसको इसकी मैपिंग करते हैं यहाँ पे 2D मैट्रिक्स में किस तरीके से स्टोर हो रहा है. सो वेयर इज 1 1 1 1 1 इज हियर, वेयर इज 1 1 2 1 1 2 is here, where is 1 1 3 1 1 3 is there. Okay, now after that 1 2 1, so 1 2 1 is this, 1 2 2 1 2 2 this, 1 2 3 1 2 3 this. What is the meaning of this one? यानी जब आप डेटा आइटम को एक्चुअल में फिजिकल मेमोरी में जब हम स्टोर कर रहे होंगे, so suppose here is 50, here is 60, here is 70, so 50 60 70 will be here. उसके बाद suppose 5 7 9, so next location पे 5 7 9 will be here. Okay, so in the same manner data elements, where is 131, so 131 and 132 is this one, and 133 is this one. So this is a row major order, 141 142 143 211 212 213. So 211 212 and 213. So this is 221 222 223. Okay, next row 231 232 233 231 232 233, right? And the last one is 241. Where is 241? Is this one. 242 is this one. 243 is this one, like this. So this is a row major order. Okay, now I want to calculate the index number, location of that index number. I want to calculate the address number. Okay, तो फर्स्ट वी अंडरस्टैंड व्हाट इज अ कॉलम मेजर ऑर्डर. कॉलम मेजर ऑर्डर को हम फिजिकल मेमोरी में कैसे स्टोर करेंगे. सो एज वी नो द मैट्रिक्स सेम 2x4 के 3 मैट्रिक्स हैं, टोटल 24 एलिमेंट्स हैं. नो इन कॉलम मेजर ऑर्डर द फर्स्ट एलिमेंट चेंज very quickly and the last one is very slowly. So this is a 2D matrix. Okay, matrix number 1, matrix 2, matrix 3, and this is a one dimensional array. तो सबसे पहले कॉलम मेजर ऑर्डर में 1 1 1 का पोजीशन तो फिक्स है. नाउ हियर 2 1 1 एंड ओके, मैक्सिमम हम कितना वैल्यू ले सकते हैं फर्स्ट इंडेक्स पे 1 एंड देन 2.
सो 1 2 एंड देन वंस अगेन 1 2, ओके। यहाँ 1 1 के लिए था, 2 2 के लिए था, यहाँ पे 1 2 3 3 के लिए, ओके, एंड 1 2 4 4 के लिए, राइट। सो आप देखेंगे मैक्सिमम चेंज फर्स्ट इंडेक्स में आता है, उसके बाद में आता है सेकंड में। दिस इज 1 1 2 टाइम्स, ओके, चेंज इज स्लो, और यहाँ पे और स्लो है, तो दिस इज ऑल्सो फिक्स कांस्टेंट, ओके 1। नाउ आफ्टर दैट वी चेंज द लास्ट, इट इज 2, और स्टार्ट किया 1 2 1 2 के लिए, once again 1 2 के लिए, this is for 1 1 and this is for 2 2, and 2 2 is fixed, last index number 1 2, okay, and then 1 2। so आप देखेंगे रेट ऑफ चेंज जो है वो फर्स्ट में ज्यादा है, फर्स्ट इंडेक्स नंबर में, और लास्ट में सबसे कम है। इन द सेम मैनर लास्ट को हम 3 फिक्स करते हैं और स्टार्ट करते हैं फर्स्ट इंडेक्स को 1 से, 1 2 1 2 2 2 के लिए, ये 1 1 के लिए, 1 2 3 3 के लिए, 1 2 4 4 के लिए। सो रैपिडली चेंज हो रहा है फर्स्ट इंडेक्स नंबर में। सो देखते हैं लोकेशन कहाँ पर आता है। सपोज यहाँ पे आपका 50 60 70 है, सो 1 1 इज हेयर, 2 1 1 is here, so this is a column, first column। तो 50 and 60 is here, अगर यहाँ पे 50 60 है तो 50 60 यहाँ पर आएगा। so next column 1 2 1 2 2 1 1 2 1 and 2 2 1, so this is a second column, okay। the next is 1 3 1, so 1 3 1 and 2 3 1, so 1 3 1 is 2 3 1 is this one। आगे चलते हैं, that is 1 4 1 2 4 1, this one। so first matrix is over, now come to the second matrix। second matrix start from here 1 1 2 1, okay, उसके बाद 2 तो मैट्रिक्स नंबर है। आगे चलते हैं, दिस इज द सीक्वेंस कॉलम वाइज। सो ये कॉलम वाइज उसी तरीके से स्टोर है जैसे हमने सोचा था कि कॉलम वाइज हम यहाँ पे स्टोर करेंगे, बट रो मेजर ऑर्डर में डिफरेंस कुछ अलग है। उनका जो एक्चुअल फिजिकल एड्रेस है वो, और जो हमारी जो मैपिंग थी 3D 2D डायमेंशनल के आपके कोई मैट्रिक्स हैं, तो उस मैपिंग से थोड़ा सा अलग काम कर रहा है। सो बट दिस इज द बेसिक फंडामेंटल कि आपको वेरिएशन देखना है कि वेरिएशन किसमें हाई होगा। कॉलम मेजर ऑर्डर में फर्स्ट इंडेक्स वेरी करता है बहुत रैपिडली और लास्ट करता है वेरी स्लोली। नाउ in row major order, suppose I want to calculate the location of I comma j comma k। suppose this is a 3D matrix, 2 rows 4 columns and total number of 2D matrix is 3, 24 एलिमेंट्स हैं, यहाँ पे मैंने सीक्वेंस में लिखे हैं, और रो मेजर ऑर्डर में ये आपके इंडेक्सिंग करा हुआ है जैसे अभी मैंने पीछे बताया था। और डायमेंशंस is 2 4 and 3। I want to calculate the address of 2 comma 3 comma 3। where is 2 comma 3 comma 3? this is I want to calculate the address of this one, कि इससे पहले कितने सेल्स हैं उनकी कैलकुलेशन अगर हो जाती है तो हम सेल के साइज से मल्टीप्लाई कर देंगे और ऑफसेट को ऐड कर लेंगे। ऑफसेट इज द बेस एड्रेस एंड बेस एड्रेस इज द सेम जो पहले एलिमेंट का एड्रेस होता है, ओके। सो बेस एड्रेस प्लस नंबर ऑफ एलिमेंट्स बिफोर 2 3 3, 2 3 3 से पहले कितने आपके नंबर ऑफ एलिमेंट्स है। कैलकुलेशन में तो 20 यहाँ पे दिख रहा है क्योंकि यहाँ पे सिंपल तरीके से लिखा हुआ है, बट हाउ वी कैन calculate? Now the effective index, actual index is 233, but effective index is 2 minus 1, that is 1, 3 minus 1, that is 2, 3 minus 1, it is 2, because lower bound is 1। अब देखेंगे यहाँ पे 0 0 से स्टार्टिंग नहीं हुआ, दिस इज नॉट द केस ऑफ सी। यहाँ पे 1 1 से स्टार्टिंग हुआ है, सो आपने 1 को माइनस किया तो 1 2 2 इज द इफेक्टिव इंडेक्स। सो अकॉर्डिंग टू इफेक्टिव इंडेक्स वी कैलकुलेट द एड्रेस ऑफ दिस वन। सो द लोकेशन ऑफ दिस वन इज इक्वल टू बेस एड्रेस प्लस, अब हमें सेल्स की काउंटिंग करनी है, तो आप देखेंगे कि आपका जो सबस्क्रिप्ट है, जो फर्स्ट सबस्क्रिप्ट दैट इज 2, ओके, एंड द लास्ट सबस्क्रिप्ट इज 3। तो अब हम सबस्क्रिप्ट यहाँ पे जो ड्राइव कर रहे हैं, दिस इज फर्स्ट सबस्क्रिप्ट को, तो आप देखेंगे 2 आपका कहाँ पर आया था फर्स्ट टाइम। अगर नीचे से ऊपर हम जाते हैं तो यू कैन सी हियर, इससे पहले सब 1 था, तो फर्स्ट टाइम 2 आपका यहाँ पर आया था इस पोजीशन पे, 13 पोजीशन के ऊपर, राइट।
So how many number of 2D array which is the size is 4 3, okay, कितने आप 4/3 के 2D array कंप्लीट करने के बाद में उस एलिमेंट तक पहुंचेंगे जहां पे फर्स्ट सबस्क्रिप्ट आपके सबस्क्रिप्ट से मैच करता है. So this is I want to I1 you can say that is E1, that ये आपको कैलकुलेट करना है. तो रिमेनिंग के जो 2 टर्म्स हैं दैट इज 4 3. तो पॉसिबल कॉम्बिनेशन क्या बनेंगे आपके, मैक्सिमम पॉसिबल कॉम्बिनेशंस आपके जो बनते हैं, देखिए 1 2 3 1 1 के साथ, 1 2 3 2 2 के साथ, 1 2 3 3 3 के साथ, 1 2 3 4 4 के साथ. सो आपके टोटल कॉम्बिनेशंस जो बनते हैं दैट इज 12. ओके, so how many 2D matrix here? So total 2D matrix is E1 times. So what is the value of E1? So value of E1 is 1. So 1 times of this 2D matrix. So I can calculate that is 12. So you are here right now. It means you are able to find the address of next element that is 13. जहां पे आपको पहला सबस्क्रिप्ट मैच कर गया. आपका पहला सबस्क्रिप्ट क्या था? 2. सो इट इज 2 हियर. सो यू आर हियर. आपने पहले ब्लॉक का इतने सेल्स आपने यहां से क्रॉस कर लिए. ओके, और आप इस पोजीशन पे आ चुके हैं. नाउ आफ्टर दैट, इसके बाद आप कितने सेल्स काउंट करेंगे? सो कम टू हियर. नेक्स्ट इफेक्टिव इंडेक्स इज E2. ओके, तो इसके राइट हैंड साइड में आपका क्या बचता है? दिस इज वन डायमेंशनल एरे. सो दिस वन डायमेंशनल एरे, so how many times of this one dimensional array? That is it 2 times because E2 is 2. So this is 2. तो हम देखेंगे यहाँ पर हमारा जो 1D array है, right, this is 1 2 3 and this is 1 2 3, right. तो आपके कंप्लीट 1D array जो हैं वो 2 हैं. ओके, सो इफेक्टिव इंडेक्स से हम कैलकुलेट करके जाते हैं. नाउ द नेक्स्ट, आपने पहला इंडेक्स नंबर यहाँ पे ड्राइव कर लिया था. सो दिस ब्लू बॉक्स क्या रिप्रेजेंट करता है आपका यहाँ पर, कि आप इतने सेल और आगे आ गए, दैट इज ए 6 सेल. सो द डायमेंशन इज 3 and the total number of array is 2, so that's why this is 6. 1 2 3 4 5 and then 6. तो आपने 6 सेल इसमें और एड ऑन कर दिए. नाउ यू आर हेयर. नाउ एट लास्ट, अब आपने सबस्क्रिप्ट कौन सा ड्राइव कर लिया? दैट इज 3, और ऑलरेडी 2 तो पहले ही चला. तो आपके 2 सबस्क्रिप्ट मैच कर गए. दिस इज 2 एंड दिस इज 3. ओके, नाउ कम टू द नेक्स्ट. अब आपके पास में I3 को मैच करना है. सो I3 means the effective index is E3, that is 2. So how many number of elements before this point? क्योंकि यहाँ पर आप कैलकुलेशन कर रहे हैं तो आपके राइट हैंड साइड में कोई मैट्रिक्स नहीं है, बट आपके नंबर ऑफ एलिमेंट्स बचे हुए. दिस इज द अनकम्प्लीट. तो दैट इज 2, ओनली 2. सो यू सी हियर, दिस इज ग्रीन बॉक्स में मैंने दिखाया, दे आर 2 एलिमेंट्स. So 2 elements is here, 6 element is here, and 12 element is there. So total elements आपके कितने हो गए? That is 20. So yeah, आपने सबस्क्रिप्ट्स 1 2 3 पहले से लिया था, और यहाँ पे आपको 3 नेक्स्ट सबस्क्रिप्ट भी मिल गया. नाउ यू आर एग्जैक्ट पोजीशन कि आप किसका एड्रेस कैलकुलेट कर रहे हैं. So the base address plus the number of cells, that is 20, multiplied by the size of cell. So this is the row measure approach. Okay, n dimensional केस में हम इसको किस तरीके से देखते हैं? Now the journal representation of n dimensional array is it is a collection of elements. The dimensions are L1, L2, L3, Ln. In a general way, we can write like this one: lower bound to upper bound for first dimension, lower bound to upper bound for second dimension, and this is for last one. And the length is this one. And I want to calculate the address location of I1, I2, I3
to in. Okay, and the effective index is the number of indices before actual index, that is ik, that is e of k is equal to ik minus lb, lower bound of that dimension. Now for calculating the address of this subscript in row major order, it is necessary to pass even number of hyperpass, even number of n minus 1 D matrix, and the size of each plane, size of each matrix is L2 by L3 by Ln. यानी आप अब यहाँ पर अगर हैं तो राइट हैंड साइड में आप देखिए कि आपके टोटल आपका मैट्रिक्स कितने साइज का बचा, दैट इज n-1 साइज का बचा है, बट स्टार्टिंग कहाँ से होता है L2 L3 टू Ln. तो आपको इतने साइज के डायमेंशन के 2D मैट्रिक्स कंप्लीट करने होंगे, नॉट 2D, दिस इज n-1 D मैट्रिक्स कंप्लीट करने होंगे, एंड द टोटल नंबर ऑफ दैट मैट्रिक्स इज even टाइम्स. तो आप कहाँ पहुंचेंगे? सो इतना कैलकुलेशन करें. अब इफ even को आप इसके मल्टीप्लाई करेंगे तो आप कौन से एलिमेंट के ऊपर पहुंचेंगे एरे के? तो फर्स्ट एलिमेंट ऑफ ए whose फर्स्ट सबस्क्रिप्ट इज I1 सबस्क्रिप्ट तक आप यहाँ पर पहुंचते हैं. नाउ आफ्टर दैट it is necessary to pass through the additional E2 groups of L3 by L4 by Ln elements. अब आप क्या करेंगे? Now if you want to reach the second subscript I2 तक अगर पहुंचना है, okay, so E2 को आप मल्टीप्लाई करेंगे राइट हैंड साइड में, आपकी डायमेंशंस कितनी बची हुई हैं, दैट इज L3 L4 L5 से लेके Ln तक. So n minus 2D matrix, how many n minus 2D matrix? E3 E2 times. So ये कैलकुलेशन करने के बाद में अब आप दूसरे एलिमेंट तक, दूसरे सबस्क्रिप्ट तक पहुंचेंगे. So you can reach the first element of A whose first two subscripts I1 and I2 respectively match with this one, जिसका आप एड्रेस कैलकुलेट कर रहे हैं, राइट? तो आपके पहले I1 तो पहले ही मैच हो चुका था, I2 अभी भी आपने मैच किया है क्योंकि उसमें आपने पहले वाले में इसको ऐड किया. नाउ दिस प्रोसेस इज कंटिन्यू. ओके, कब तक जाएंगे? तब तक कि n-1 डायमेंशनल, इससे पहले वाले का अगर आप सबस्क्रिप्ट फाइंड आउट करना चाहते हैं तो इसके राइट हैंड साइड में 1D एरे बचेगा. वो हाउ मेनी टाइम्स? दैट इज Ln टाइम्स, सॉरी दैट इज E, इसके पहले जो आपका जो सबस्क्रिप्ट है दैट इज En-1 टाइम्स. ओके, एंड द लास्ट वन इज okay, so a similar process must be carried out through the other dimensions until the first element whose first n-1 subscripts match those of the desired element reach. आपके first n-1 subscripts मैच करेंगे I1 से लेके In-1 तक. बट व्हाट अबाउट द लास्ट वन? क्योंकि उसके लिए आपको सिंपल उसको ऐड कर देना है. Finally, we pass through En additional element. Okay, it means the lower bound actual index number minus the lower bound of the last dimension. So ये ऐड करने के बाद आप अपने desired location के ऊपर पहुंच पाएंगे. So therefore the location of this element will be like this one. अब आप इसको, इस पूरी चीज को इस तरीके से आराम से समझ सकते हैं. So E1 आपके जो मैट्रिक्स हैं दैट इज n-1 D मैट्रिक्स एंड द साइज इज L2 मल्टीप्लाई बाई L3 मल्टीप्लाई बाई Ln. सो टोटल मैट्रिक्स इज E1. ओके, सो ये कैलकुलेशन करने से I1 तक पहुंचते हैं. नाउ प्लस, नाउ द सेकेंड इफेक्टिव इंडेक्स दैट इज E2, इसके राइट हैंड साइड में जितने भी एलिमेंट्स बचते हैं दैट इज L3 मल्टीप्लाई बाई L4, वहां के जितने भी परम्यूटेशन कॉम्बिनेशंस आते हैं वो सारे मिला करके जो मल्टीप्लाई करेंगे. So how many times of this n-2D matrix? E2 times. So आप next element, next subscript I2 को तक पहुंचेंगे, next उसी array के element तक, यानी I1 I2 derive कर लिया आपने. Now the process is same. If I want to calculate the third subscripts, तो third effective address index number multiply by the size on the right hand side. तो n-3 D मैट्रिक्स जो आपका बचा है L4 से लेके Ln तक. So this one
this matrix is how many times of this matrix? E3 times. Okay, now processes continue, and the last one is this one, 1D array. The size is ln, how many times? En minus 1 plus the total number of elements before that point, जो last का index number हमारा बचा हुआ है, that is a effective index number, that is en. So this is the actual. Now if I take the common L3 L4 से लेके अगर हम common निकालेंगे next में, so we can calculate more efficiently like this one. तो E1 L2 plus E2 कॉमन निकाला आपने यहाँ पर, नेक्स्ट इज सेम. अब यहाँ से हमने कॉमन निकाला L4 L5 Ln, L4 L5 Ln. सो कॉमन बचता है रिमेनिंग टर्म्स E1 L2 प्लस E2 मल्टीप्लाई बाई L3 प्लस E3 यहाँ से आया. ओके इसी तरीके से प्रोसेस को हम आगे कंटिन्यू करते हैं. सो वी गॉट दिस फार्मूला. ओके सो द लोकेशन ऑफ I1 I2 I3 to In is equal to this one. So why we use this formula? Because you can see here there are many multiplication signs, there are many plus sign. अगर आप काउंट करेंगे तो बहुत कंप्यूटेशन है, लेकिन अगर आप यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन को काउंट करेंगे और प्लस साइन को काउंट करेंगे, so there are less multiplication and addition signs. That's why we use this formula for our calculation purpose. Okay, now in journal हम इसको इस तरीके से भी लिख सकते हैं. Now the location of this one, it is equal to base address plus size of cell multiply by the product multiplication of L2 L3 L4 n times like this one. अगर i की वैल्यू 1 पुट करेंगे तो 2 से स्टार्ट होकर के कहाँ तक जाएगा? 2 तक. सो यहाँ पे 2 से स्टार्ट होकर के n तक के मल्टीप्लिकेशन होंगे. i का वैल्यू आपने 1 पुट किया, सो दैट इज E1. नाउ अगर नेक्स्ट कैलकुलेट करना, i का वैल्यू 2 पुट करेंगे तो 3 से स्टार्ट होकर के n तक जाएगा. सो L3 से Ln तक का मल्टीप्लिकेशन, एंड हियर इज E2. सो E2 इज आल्सो मल्टीप्लाई बाय दिस वन. तो नेक्स्ट सबस्क्रिप्ट ड्राइव होगा एंड प्रोसेस कंट्रोल. सो दिस एंड दिस आर द सेम. Okay, so this is the row major order derivation. Now in next video I will explain the column major order. Thank you so much.